Assalamualaikum guys, welcome to our new video. In this video, we shall discuss about the mod with group data. mod group data में हम यूज करेंगे x। इसका मतलब होता है x contains the data questions values and frequencies। ठीक है, जो x होगा वो क्लास इंटरवल होगा। समटाइम्स सिंपल भी होगा, सिंपल से हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, बट मोस्टली x होगा। अदरवाइज उसके साथ हम फिर क्लास इंटरवल खुद बनाएंगे, वरना फिर डायरेक्ट क्लास इंटरवल होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। एज वेल एज मैं आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि ग्रुप डाटा में हमेशा एफ यूज होगा। H is the distance between class intervals. Fn stand for maximum frequency. F1 will be the above frequency of maximum frequency, and F2 is the lower frequency of F. Basically, the explanation of formula here. अब क्लास इंटरवल लिखेंगे 0 to 10। एक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल हमेशा ऐसे ज़्यादा होता है 10, 20, 30। No. Sorry. There is a little mistake. 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, as well as one. Now we have to create find the maximum frequency here. The maximum frequency means the greater frequency will be this one, F1, FM. As well as we shall choose the F1 by here according to these conditions. Therefore, we shall choose the F2 here. Why not? Then where is L? And we shall contain by the class boundaries. Heading of class boundaries, it's mean to
Now the question arises, what would be the definition of class interval and class boundaries? Okay. Therefore, we shall describe it here. Uh, Class interval is the value range of values. ये range है ना, यहाँ lower है ना ऊपर है. Range of values into which data is grouped. देखो ये ग्रुप की फॉर्म है ना. This therefore it is a class interval. So what would be a class boundaries? Firstly, we shall describe it practically, then we shall define it. Okay. क्लास बाउंड्रीज बनाने का एक मेथड है. दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट. ठीक है. लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट्स में से 0.5 ऐड करना. 0.5 माइनस करेंगे तो माइनस 0.5 एज वेल एज actual class that separate one limit by other. ठीक है. क्लास बाउंड्रीज ये होगा. ओके. इस तरह देखिए एक्चुअली ये थोड़ा सा ऊपर से है. इसको डिफाइन किया हुआ. ये इसकी एक्चुअल है, मतलब ये एक्चुअल लिमिट्स है इसके अंदर. इसके पीछे भी ये आंसर तो इक्वल ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा एक्चुअल में रियल करके इसको हमने डिफरेंट किया हुआ है. इसको डिफरेंट करके ग्रुपिंग की हुई है. ठीक है. इसमें और इसमें डिफरेंट है लेकिन आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा. So I have to raise the definitions. फार्मूला हम आगे लिख देंगे नीचे, इसका नो इशू. Okay. Now question arises, what would be the L जो हमने पढ़ा था लोअर क्लास मॉडल, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. दिस इज आवर मॉडल क्लास and lower limit, this is lower limit and this is upper limit. Therefore this is lower limit and this is upper limit. लोअर लिमिट वहां से लेनी है जहां से हमने फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को तय की है. उसी तरह उसके सामने जो सी लिमिट होगी वो लोअर लिमिट होगी. I wanna say that this will be the lower limit. I mean our L of formula. The definition of class width would be difference
between upper limit and lower limit of data is called the same as class width. ठीक है, this is called lower limit and this is called upper limit. ठीक है, difference between upper limit and lower limit. This is called upper limit, this is called lower limit, this is called lower limit, this is called upper limit. Okay, again and again, this is called lower limit and this is called upper limit. Okay, we shall, हमने डिफरेंस क्लास विड्थ फाइंड करने के लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये हम सिर्फ एक ही निकालेंगे क्योंकि क्लास विड्थ का सबका सेम होता है। ठीक है, यहाँ से निकालें, यहाँ से निकाल लें, यहाँ से निकाल लें, सबका सेम आएगा। 10 माइनस 0 10 आएगा, 20 माइनस 10 20 माइनस 10 10 आएगा ऑब्वियसली। 30, चलो हम यहाँ से कर देते हैं 30 माइनस 20 10, दिस विल बी h आवर। मोड का फार्मूला पुट करते हैं, L जमा F1। We shall also use the formula as well as 1 minus F2 multiply h। ये हमारे लिए थोड़ी सी ज़रा आसानी पैदा कर देते हैं। ठीक है, अब फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करें। L क्या है 29.5, FM 20 and F1 minus 12, 2FM 20 and F1 and 12 है। ये according to this formula F1 12 and F2 10 मल्टीप्लाई h क्या कहना है। ठीक है, हमने इस पूरे को बॉड मास रूल के मुताबिक ही सॉल्व करना है। ये ना हो कहीं मल्टीप्लाई किया हो, कहीं डिवाइड किया हो, कहीं कुछ किया हो। ठीक है, solve it according to bord mass rule completely। Plus 4.4 and we got answer approximately 34। This will be the mod of this question। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारे मोड का पार्ट 1 है। ओके, जिसमें हमने क्लास इंटरवल से डायरेक्ट क्लास बाउंड्री बनाई और फिर नेक्स्ट सॉल्व किया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम बताएंगे एक्स से क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं। क्लास इंटरवल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ एक्स भी हो सकता है, यहाँ इंपॉर्टेंट है क्लास बाउंड्रीज। मोड में लेकर ये क्लास बाउंड्रीज जस्ट इंपॉर्टेंट है। हम एक्स हो तो उससे क्लास बाउंड्री कैसे बनाएंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपना कोई भी स्टैट्स के बारे में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इजीली, नॉट इशू। अस्सलाम।